This project is definitely शक्तियों का मेला है. जब शक्तियां मिलती है तो एक अच्छी जगह पर मिलती है, एक अच्छे मौके पर मिलती है और एक अच्छी मंजिल पर मिलती है, तो वो कुछ और ही शक्तियां पैदा हो जाती है उसमें से. और हमारी जर्नी ऐसी ही रही है. एंड आई एम सो वेरी मच ब्लेस्ड दैट when I followed a musician from Rajasthan about his life story, and when I understood him, a very, very eminent Kamaicha player, and had put a lot of research behind it, then I wrote this story and became more inspired to go into the community and find out कि क्या है उनमें संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और फिर भी उनका जीवन क्या है. तो ये सब मिला के आई हैव रिटन दैट स्टोरी एंड देन केम अबाउट टू फाइंडिंग हु कुड बी ऑन माय टीम. बट देन इट ऑल बिकेम दैट ईच एंड एवरीवन यू सी सीटेड हियर, वी कनेक्टेड probably in minutes. Mithun ji, exactly the same thing. It was more about the content. It was more about what it wants to tell to the world. That Manganiyars who are sitting in the huts in the interior of Bardmer region of Rajasthan, they have stack of passports living in a hut, but they still not get their music out there. If we bring this, a beautiful love story based on true events, and then also mesmerizing music created by the two top award-winning musicians coming together in one film, it will really bang everywhere in the world. And let me tell you, since I landed here 4 days ago and had recordings all over at Yashraj, at Vishwa Mohan Bhatt studio in Jaipur, it was very, very magical. What they have created, I cannot give you an examples of it, but it is really good. One thing I can tell you is Mithun and Syed Qadri ji, जिसको मैं शब्दों और लफ्जों का शहंशाह और बादशाह कहता हूँ. अब है ही तो फिर. And then that love story lives with that beautiful music from Mithun. It really creates a master. Similarly, when I met Ricky Cage at IFI Goa a couple of years ago, when he was there to inaugurate with our then IB minister Thakurji. No, sister the minister. My bad. Sorry. But right after the inauguration, we met only 2 minutes and he signed it right then. That was the connection of the content and the story. We with each of them, we negotiated or we talk about the commercials way, way, way late. And you can think about how much passionate they were to join this team. And I really, really have my heartiest thanks for you. It is our love. It is everyone's passion, and then bringing it in a very beautiful love story, again based on true events. So we are out here. I'm very, very proud that like Ricky Cage, from last 1 month, I'm trying to connect to him, and I only remember one movie, Catch Me If You Can. I mean, I would write hello, hi, and he says, no, I just landed in Los Angeles. So after 2 days, oh no, hold on, I'm just going to be here in London. So, but again, we are still very good friends. I mean, you know, our friendship is so powerful that he understands what I was looking for, and we were able to bring this together, the recordings that we did, and I'm very, very thankful, sir. So
I do not have to introduce anything more. With my co-producer Somendraji, who is right there for anything happening when I'm soundly sleeping in US, is my true partner, and I'm so lucky and blessed to have him with me. मैं बताऊंगा नहीं, पर एक एक करके सब अनवेल होगा अभी तो। रिकी भी बताएंगे, सभी बताएंगे कि कैसे हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब मुकेश जी ने करीब कोविड टाइम 2 साल पहले हमने शेयर किया, और उसके बाद हमने रिसर्च किया इसको, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरा मांगनिया कम्युनिटी, उसके बाद में हमने पूरी इसकी स्क्रिप्ट रेडी हुई। फिर हम अनूप जी और जितने भी लोग हम हैं हमने बात किया, तो कहने का प्राउड फीलिंग है कि ये पहला राजस्थान का प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनली म्यूजिकल ट्रैवल जर्नी फिल्म है, लव स्टोरी है। बट एक जो मुकाम होता है कि राजस्थानी फिल्में जब हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं तो हमारा राज्य बहुत हम पिछड़ा प्रदेश समझते हैं अपने आप को। जब हम साउथ और दूसरे रीजनल भाषा की फिल्मों को देखते हैं, हमने सीखना चाहते हैं, हमने फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरह एक रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री डेवलप होती है। बट जब हम अपने राजस्थान की फिल्मों को देखते हैं तो पिछले 5-8 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ए फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ। इन दैट आई प्रमोटिंग द रीजनल सिनेमा, जो कि एक सिनेमा राजस्थान का डेवलप हो, वहाँ के फिल्म मेकर्स को मौका मिले, और सबसे बड़ी चीज़ होती है को प्रोडक्शन। और मुझे बहुत गर्व खुशी की बात है कि ये प्रोजेक्ट एज ए को प्रोडक्शन आज हमने यूएस और राजस्थान को एक इस तरह मुकाम पे को प्रोडक्शन किया है। और एज ए को प्रोड्यूसर जो मैं रिप्रेजेंट करके मुझे बहुत खुशी हुई कि एक रीजनल सिनेमा कहानी जो कि एक ट्रैवल कर रही है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, और संगीत जो एक ट्रैवल कर रहा है, और सब जो जुड़े हुए जैसे बताया विश्व मोहन भट्ट जी, गाजी खान, मामे खान, मोहम्मद फैज, आई थिंक सभी जड़ें राजस्थान से जुड़ी और सभी वर्ल्ड वाइड उसको लोगों को जानते भी हैं। तो इस तरह से इस कहानी को हम पूरे वर्ल्ड वाइड ले जा रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आने वाली जनरेशन और राजस्थान रीजनल सिनेमा को कितना एक सीखने को मिलेगा जब इतने दिग्गज, इतने लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत ऐसा शुक्रिया, इतना खुशी हो रही है कि ये मैं आने वाला भविष्य जो 5 साल राजस्थान और रीजनल सिनेमा का क्या होने वाला है, ये फिल्म शायद उसको रिप्रेजेंट करेगी। थैंक यू। हमने प्रश्न है उस विषय में ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, मुझे इस साल जो है 19 साल पूरे होते हैं बतौर हिंदुस्तानी संगीतकार। मेरी पहली फिल्म थी 2005 में, जिसका नाम था जहर। तो जब हम देखते हैं, मैं अपने सफर को जब देखता हूँ, चाहे मैं जहर की बात करूँ, अनवर की बात करूँ, इनफैक्ट जहर में सईद कादरी साहब मेरे साथ थे, अनवर में मेरे साथ रहे, बहुत सारी फिल्मों में हमने साथ काम किया। लेकिन जब मैं फिल्मों की अपनी बात करता हूँ, चाहे जहर हो, मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, तो मैं देखता हूँ कि जो चीज़ हमारी सभ्यता में एक बहुत लोहे का काम करती है वो है हमारा संगीत। हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास भी रहा है, अगर हम 50वीं दशक की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे हम सी रामचंद्र साहब की म्यूजिक की बात करें, हुसनलाल भगत राम की बात करें, लेटर ऑन शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब का म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ऑल द ग्रेट्स, हम देखते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन संगीत जो है वो हमारे नस में बहुत बड़ी गहराई से बसा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो सफर मेरा रहा है, इस देश ने, हमारी फ्रेटर्निटी ने, आप सभी लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पिछले 1-2 सालों से मैं इस ताक में था कि मैं अब कुछ संगीत के लिए, मैं कुछ अपने देश के लिए, मैं कुछ अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और एक अलग दिशा भी इख्तियार करना चाहता हूँ। ये बातें मेरे जहन में चली रही थी, और तब मुकेश जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया और उन्होंने मुझे अपना दर्शन बताया। और मुझे ये बात बड़ी अनोखी लगी कि ये जो पूरा जो कहानी कही जा रही है, ये संगीत के माध्यम से कही जा रही है।
तो अभी आप देखेंगे कि आज का भी जो इवेंट है, अभी बहुत सारी चीजें मुकेश जी, सोमेंद्र जी फाइनल करने वाले हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस चीज पर है कि इस फिल्म का जो आधार है वो संगीत है। तो ये जो दर्शन है और ये जो संगीत के प्रति एक मनोबल है, एक कॉन्फिडेंस है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने यही देखा कि हम जब फिल्मों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, आज भी हिंदी फिल्मों में हम यही बात करते हैं कि अगर म्यूजिक जो है लोगों से उसका जो है वास्ता बन जाए तो फिल्म की जो ओपनिंग होती है बहुत मजबूत हो जाती है। इसका मतलब संगीत एक इतना मजबूत माध्यम है। तो मैं एक ऐसी फिल्म से जुड़ना चाह रहा था जहां पे मैं इस संगीत के जरिए और रंगों को पेश कर सकूं और अपने संगीत को एक नया चैनल दे सकूं। और फिर मैंने देखा कि जो कहानी है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। जैसे सोमेंद्र जी ने बताया कि जो लांगा कम्युनिटी है, मांगणियार है, उनके संगीत को मैंने बहुत सुना और मुझे लगा कि इस रंग को जो है, अगर मैं भारत का वासी होने का उसका प्रतिनिधि करता हूं तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो उसको लेकर और सईद कदरी साहब की पोइट्री को लेकर जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है, हमारा इंटेंशन यही है कि हम भारत के इस संगीत के दुनिया के प्लेटफॉर्म तक लेके जाए, जैसे रिकी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम गौरव बहुत बढ़ा दिया है। हाल ही में मेरा जो गाना था सनम रे, जो आप लोगों ने सुना है, उसकी एक धुन इस्तेमाल की गई थी एक गाने में जिसका नाम है वूपटी, जो बिलबोर्ड हिप हॉप पे नंबर 1 पे जाके बैठा, और वो एक हिंदुस्तानी धुन पर आधारित है। सनम रे एक हिंदुस्तानी धुन है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है तैयार है कि भारत से जो संगीत आ रहा है उसके लिए, भारत के कलाकारों के लिए, भारत के संगीतकारों के लिए। और यही सही समय है जब हम अपने झंडे को और अपने क्रिएटिव बातों को एक ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुकेश जी का जो दर्शन है, सोमेंद्र जी का दर्शन है और कादरी साहब मेरे साथ में है, तो मुझे लगा ये सही समय है इस फिल्म से जुड़ने के लिए। और हमने जो शुरुआत की है वही इतनी खूबसूरत है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको जिंदगी में अगर ऐसा मौका मिले कि उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज का हिस्सा बनने का, तो मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे उसमें कूद जाना चाहिए। तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की बात है, आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक का ही महीना था। हम लोग जयपुर में थे सोमेंद्र जी के फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ पर एक रात खाना खाने के बाद सोमेंद्र जी ने मेरी मुलाकात मुकेश जी से कराई, और वहीं डाइनिंग रूम में बैठे बैठे मुकेश जी ने मुझे पूरी कहानी सुना डाली इस फिल्म की। और मुझे सुन के लगा कि कुछ तो बात है इस कहानी में। ऑब्वियसली इन्होंने म्यूजिक की जिक्र किया, और मुझे याद है उस वक्त मिथुन और रिकी का जिक्र उस वक्त भी हो चुका था, 1 साल पहले भी। सो जब मुझे पता चला कि ये इस तरह की एक फिल्म बनने जा रही है और म्यूजिक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, और जो कैरेक्टर्स इन्होंने मुझे सुनाए, जो कहानी सुनाई, और उसी रात को हमने शायद अपना ईमेल आईडी एक्सचेंज किया। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे मेल इनबॉक्स में पूरी की पूरी फुल स्क्रीन प्ले था फिल्म का, और मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और लगे हाथ उसको फटाफट पढ़ लिया और इमीडिएटली इनको मेल पे रिप्लाई कर दिया कि सर आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेनेवर यू गोना स्टार्ट इट। थोड़ी बहुत हमारी बातचीत होती रही है, और फिर फाइनली आज हम यहाँ मिले और मुकेश जी का मेल आया कि हम आज ये अनाउंस करने वाले हैं। सो मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि म्यूजिक तो बहुत ही बेहतरीन होगा, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। म्यूजिक जो है वो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो किरदार मुकेश जी ने क्रिएट किए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जिनकी एक कहानी है, जिनकी ये जर्नी है, वो इतने अर्दी, इतने रियल हैं कि आप उनको जब देखेंगे, उनकी जिंदगी को में झांकने की कोशिश करेंगे इस फिल्म के थ्रू, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानूंगा अपने आप को कि इन सब के बीच यहाँ साथ आज बैठा हूँ, और इनके द्वारा जो क्रिएशन होने वाला है उसका मैं एक हिस्सा बनूंगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनूंगा उस कलाकृति को आगे ले जाने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मुकेश जी, एंड थैंक यू सोमेंद्र जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू मुकेश जी। ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरे
जलाने वाले सुन मेरी, ओ तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना। और थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा जब मैं रियलिटी शो में था, विनिंग से बहुत पहले, और मुकेश जी का मेरे पास मैसेज आया था और तब से हम कनेक्टेड हैं और सारी अपडेट्स मुझे मिलती रही। एंड कल परसों में ही मैंने रिकी सर के साथ गाना डब किया है और सईद सर भी थे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे वो गाना मिल रहा है और आई एम फीलिंग वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और यही कहना चाहूँगा। आप सब देख सकते हैं कि डाइस पे जितने लोग हैं सारे के सारे जिनके रूट्स जो हैं, और उसी को लेके हमें शायद राजस्थान से कलाकार न मिले, मगर और भी कलाकार जिन्हें ये पूरी स्टोरी लाइन पसंद है, हमें सामने से फ़ोन कॉल मिल रहे हैं और आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। तो हाँ, हम सभी जगह से लेंगे और शायद आपने एवी में देखा है या पता नहीं है मुझे, मगर दुनिया की सबसे बहुत अच्छी कैरोलाइन कैम्पबेल करके वायलिनिस्ट है। ये ऐसा होता है कि जब हमारी पैशन देखते हैं और म्यूजिकल जर्नी देखते हैं तो उन्हें सामने से लगा हो जाता है कि मुकेश, आई वांट टू बी विथ यू, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग, right? Just based on the content, I got a call just a few weeks before I came here from a Hollywood producer. तो बोले हमारा नाम रख दो। तो बोला हम ठहरो, बात करते हैं, right? I want to see how you want to get involved. So हम सभी जगह से लेंगे, मगर हमारा जो कंटेंट है वो भी सोनी यूएसए को भी इतना ही पसंद आया है। और अभी ज़्यादा मुझे कहना नहीं है क्योंकि हमें कुछ ब्लैक एंड वाइट में अभी कुछ हमने किया नहीं उनके साथ, बट द पैशन फॉलोज, इट इज़ म्यूजिकली ड्रिवन, एंड देन आई एम श्योर वी विल हैव a lot of good actors and actresses to join us. My question is to Rick. That was not my decision. I just liked the title, but the decision was, of course, the writer's decision. So I think that's a question for him. Yeah, could the writer answer it? Does it not resemble Slumdog Millionaire? Yeah, I will take at least 60 minutes to answer this. No, I'm just kidding. Okay. I'm just kidding. Let me tell you in just 30 seconds that passion is love and love is passion. We have one of our tagline called "A millionaire never goes bankrupt." And why think about millionaire of just money, rupees, paisa, dollars, right? You could be a millionaire of your art. You could be a millionaire of your love. जिसके साथ आप प्यार करते हैं। आपकी कला भी हो सकती है, आपकी चहेते भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। And let me tell you, each and everyone sitting in this audience have experienced that if you have a passion, आपने सुबह भी खाना नहीं खाया होगा, शाम को भी खाना नहीं खाया होगा, तो भी आप रात को उठ के अपने पैशन के बारे में सोच सकते हैं और आपकी कला को आगे ले जा सकते हैं। And that is what the millionaire is. और वो बैंकरप्ट नहीं जाता है, right? मोहम्मद फैज देर आए दुरुस्त आए। आपने